Hello students, I am Ravinder Yadav, your math expert at Dabat Academy. In today's video, I will help you with complete solution of mathematics portion of recently conducted RIMC Dehradun entrance exam December 2024. As per our analysis and the knowledge of students who were enrolled in our classroom training program, at least 80% of questions were asked from the question bank, which was covered during our classroom courses in online and offline classes. Also, if you are looking for PDF of this exam paper, please check out link in the description. Let's start today's video. The question number first is, what should be added to twice the rational number 7 by 5 to get 3 by 5? Let's suppose the number be x. Let the number x. So we have to add x, that is x plus twice of 7 by 5 equals to आ जाएगा 3 by 7, that is equals to x plus 14 by 5 equals to 3 by 7. Then according to the big plus formula, this number is addition on left hand side, on right hand side it will be on negative. Then we use 3-step method to solve this question. We have to multiply 3 by 5, that is 15. We have to multiply 7 into 14, that is minus 98 upon 7 को 5 से, that is 35. Then the answer is equals to minus 83 by 35. Here is question number second. We have to divide 3x cube plus 10x square y plus 17x y square plus 6y cube by 3x minus 2y. So we use long division method here, that is 3x minus 2y, 3x cube plus 10x square y minus 17xy square plus 6y cube. So सबसे पहले हम इसको डिविडेंड और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है उनको मैच करेंगे. तो मैच करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वेयर से. सो दैट इज 3x की क्यूब. व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर बाय 2i, दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर y. देन वी हैव टू चेंज द साइन. दिस नंबर कैंसिल दिस नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 12x स्क्वेयर y माइनस 17x y स्क्वेयर प्लस 6y की क्यूब. देन अगेन हमें इस टर्म की डिवाइजर के साथ मैच करना है. तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, x के लिए हमें एक x ही है, देन 1 y. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4x y. सो दैट इज 4 3 जा 12 x स्क्वेयर y, देन माइनस 4 2 जा 8 x y स्क्वेयर. देन अगेन वी हैव टू चेंज द साइन, दैट इज कैंसिल. देन वी हैव माइनस 9x y स्क्वेयर प्लस 6y की क्यूब. Then again we have to match this. So we have already x, we have 3 and 9, we have to multiply it by 3y square. So we have, that is minus 3 3 is 9 x y square minus minus plus, that is 6 y की cube. Then we have to change the sign again, then case cancel and the remainder is 0. So next question is, find at least 2 pair of natural number which satisfy the given equation, and the given equation is 2x cube equals to y square. We can write it as y square equals to 2x cube. Then left hand side square है, on second hand side ये हो जाएगा square root, so that is 2x cube. The power of x is x cube, so we can write it as 2 into x into x into x. So we have to put some value of x जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए. तो फर्स्ट वी हैव टू पुट 2. हम 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 का रूट नहीं निकलता. देन वी हैव टू पुट 2. सो 2 पुट करेंगे. देन द वैल्यू ऑफ y इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 1 2 का पेयर हियर इज 1, तो y इक्वल आ गया 4. So the first pair is 2 and 4. Now we have to proceed to the next pair with the same equation, that is y equals to 2 into x into x into x. Then the next pair is 8. 2 into 8 into 8 into 8. So 8 आ जाएगा and 8 to 16, 16 का जो रूट होगा वो 4 हो जाएगा. Then the y equals to 32.
2. So the value of y is 32 and the value of x is 8. So the second pair is 8 and 32. So here is question number 4. In the given figure, ABCD and BECD is a parallelogram. So we have two parallelogram here, and BCFD is a rhombus and BCFD is a rhombus. So this is rhombus and these two are parallelograms. Then the next is angle DBC is equals to 80 degree. So angle DBC is 80 degree. So we have to find all three angle of triangle AEF, that is AEF. So first we have a rhombus, that is BCFDJ rhombus, that is already given in the question. So angle angle DBC equals to होगा angle DFC and that is equals to 80 degree. The opposite angle of rhombus is equals to 80 degree according to the question. Now we can clearly see जो रोम्बस है उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, मीन्स वी हैव टू एंगल दैट इज 80 डिग्री. सो एंगल BDF प्लस एंगल BCF प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री. देन एंगल BDF प्लस एंगल BCF इक्वल्स टू हो जाएगा 360 minus 160, that is equals to 200. It means the sum of this angle and this angle is 200 degree. तो ये हो जाएगा 100 डिग्री complete angle and this complete angle is also 100 degree. Now हमें पता है कि ये रोम्बस है and CD is a diagonal. जो CD है वो हमारा क्या है, डायगनल है. इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, देन कि जो डायगनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है और दोनों डायगनल इक्वली बाइसेक्ट होते हैं. सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन अगेन दिस पार्ट वाज आल्सो 50 डिग्री. नाउ AE पैरेलल टू DC, देन एंगल FAE इज इक्वल्स टू एंगल FDC, मीन्स ये हो जाएंगे इक्वल्स टू 50 डिग्री. That is corresponding angle. Similarly, the next angle FEA equals to 50 degree by corresponding angle. So this was also 50 and this was also 50. So the all three angles of triangle AEF is 50, 50 and 80. A man misses a train by 1 hour if he travels at the speed of 4 किलोमीटर. यानी हमारी जो स्पीड 1 है वो गिवन है, देन द स्पीड 1 इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर एंड ही मिसेस द ट्रेन बाय 1 आवर, यानी ही इज लेट बाय 1 आवर. एंड द सेकेंड इज इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 5 किलोमीटर पर आवर. अगर उसकी स्पीड यानी सेकेंड स्पीड अगर 4 से बढ़कर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, देन ही विल स्टिल मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट. सो एट वट स्पीड शुड ही ट्रेवल सो दैट ही रीचेज द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम. सो डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू में टाइम. सो हमारे पास स्पीड 1 है, 4 इंटू 5 अपॉन में 5 माइनस 4 एंड इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, ओके, टाइम का डिफरेंस लेना हमें, दैट इज 58 मिनट्स. तो 58 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60. सो 23 जा 60, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1 आएगा. देन द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 558/3 किलोमीटर. नाउ हम किस डिस्टेंस को किसी एक फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं. सो वी हैव टाइम,
The formula of time is distance upon speed, and we have distance 58/3 and we have speed that is 4. So we have to cut it by 2, that is 29 equals to आ जाएगा 29/6 आवर. सो इस वाली स्पीड पे वो 1 घंटा लेट था, यानी इस टाइम में से हमें 1 घंटा कम करना है तभी वो टाइम से पहुंच पाएगा. सो द यूजुअल टाइम इज 29/6 minus 1. By 3-step method we will solve it, then the answer will be 23/6. Now जो एग्जैक्ट टाइम होगा, जो स्पीड होगी, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस, जो कि है हमारे पास 58/3 एंड द टाइम इज 23/6. सो 3 1 3, 3 2 6, ये ऊपर जाएगा 58 2 8 2 16, 116/23 किलोमीटर पर आवर. यानी अगर उसको टाइम से पहुंचना है तो उस हिज स्पीड मस्ट बी 116/23 किलोमीटर पर आवर. ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी मैन ने कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरो किए हैं, यानी प्रिंसिपल, एंड पेड इट बैक टू इन 2 years विद 2 इंस्टॉलमेंट, और पे बैक किया है 2 इंस्टॉलमेंट में. सो लेट सपोज ओके, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 2362.5 and the rate of compound interest is 5%. So what sum did he borrow? So we have to find the principal basically. So principal का installment के केस में जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है that is principal equals to first installment upon में 1 plus r by 100. In case of second installment that is second installment प्लस में 1 प्लस में r by 100 की पावर 2. सो वी हैव प्रिंसिपल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 3000 अपॉन में 1 प्लस डेट इज 5/100 एंड द सेकेंड वन इज 2362.5 अपॉन में 1 प्लस 5/100 की पावर 2. सो दैट इज इक्वल्स टू 5 1 5 20. सो ये हो जाएगा 3000 इंटू में 20 अपॉन में 21 प्लस में अगेन ये हो जाएगा 2362.5 इंटू 400 अपॉन 441. ओके, हम पॉइंट को हटा के नीचे लिख सकते हैं 10, 0 से 0 कैंसिल. सो हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर को सेम करके हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. तो हमें क्लियरली पता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 21. तो हमें यहाँ पे भी 21 की नीड पड़ेगी. सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 21 एंड डिवाइड बाय 21 प्लस 23625 इंटू 40 अपॉन 441. So when we multiply these 1 2 3 4 0 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 upon में 441. Okay, when we multiply this then answer will be 945,000 by 441. Then the calculation will be 2205 by 000 divided by 441. Then it will be on 5. Then answer is 5000. So the principal is 5000. Find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves the remainder 6 and 5 respectively. ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है. हम क्लियरली क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हैं कि हमें निकालना है HCF. इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. 6th क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. सो फर्स्ट हम निकालते हैं HCF ऑफ गिवन नंबर दैट इज 1657 माइनस रिमाइंडर है हमारे पास 6 एंड द सेकेंड वन इज 2037 माइनस 5. सो द सब्ट्रैक्शन इज 1651 एंड 2032. इसका हमें निकालना है HCF. अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर पाएंगे. देयर विल बी हार्ड कैलकुलेशन, सो वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो दैट इज 2032 अपॉन 1651. सो
600 1 just 651, that is calculated. We have 1 carry 8 381 0. So here is 1651, 4 पे जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 3 15, that is 721, 127 equals to 381, and 127 3 जा 381. So the answer is 127. So HCF is आ जाएगा हमारा 127. So 127 is the number जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को. So we have reminder 6 and 5. In a factory, the production rose to 48,800 from 40,000 in 2 years. Find the rate of growth. Okay, this question is from R.D. Sharma. So we have amount that is 48,400. We have principal that is 40,000, and we have time that is 2 years. So the formula is amount equals to principal bracket 1 plus rate by 100 की पावर टाइम. सो हमारा जो अमाउंट है दैट इज 484,000 एंड अपोन में 40,000 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस रेट हमारे पास है नहीं अपॉन 100 की पावर 2. सो 30 से 30 कैंसिल, 4 से 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, 121 बाई 100. यहाँ पे स्क्वेयर है, इधर आके स्क्वेयर रूट इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 11 बाई 10 माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आर बाई 100. व्हेन वी सोल्व दिस दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 that equals to r by 100. then we do cross multiply, then 100 by 10 equals to आ जाएगा r, then r is equals to 10%. so the rate of growth is 10%. find the smallest number of 5 digits. Okay, find the smallest number of 5 digits that exactly divisible by 24, 36, 16 and 54. so first we have to find the LCM of these numbers. So LCM of 16, 24, 36, 54, that is so first we have to divide it by 2, 8, 12, 18, 27. then again 2 से करेंगे तो 4, 6, 9, 27. then again 2 से करेंगे तो 2, 3, 9, 27. then again 3 से करेंगे 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27. then again हम 3 से करेंगे 2, 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. now we have to multiply all these numbers. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96 and 96 3 जा आ जाएगा 432. so the LCM of these number is 432. now we have to divide the smallest 5 digit number that is 10000 10,000 by 432. so that is equals to 432 2 ja 468, that is equals to 6 9 3 136. then we have to take it 0. so 4 3 जा 12, ऑलमोस्ट 3 पे चला जाएगा, that is 6 3 3 जा 9 and 4 3 जा 12. तो आ जाएगा 4, 15 में से 9 गया 6 and 2 to 0. ओके 64 रिमाइंडर. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करते हैं एंड उसको ऐड करते हैं डिविडेंड में. सो डिवाइजर वी हैव 432 माइनस 64, ये आ जाएगा 8 6 368. सो द इनका आ गया 368 एंड द डिवाइजर इज 10,000. सो द आंसर इज 10,368 is the smallest number which is divisible by 16, 24, 36 and 54.
अगर ये लार्जेस्ट पूछता तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं एंड दैट विल बी द आंसर। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर अनक्लोज एंड एरिया इज 484। अगर कोई कॉपर वायर है उसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंट किया है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू 484 मीटर स्क्वायर एंड द सेम वायर बेंट इनटू सर्कल। और इसी सेम वायर से हमने बनाया है एक सर्कल। सो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें इस सर्कल का क्या बताना है, एरिया बताना है। सो सबसे पहले हमें साइड की नीड पड़ेगी क्योंकि सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 484 इक्वल्स टू 22 मीटर। सो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो आ गई हमारी 22 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको पता है दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इक्वल्स टू 88 मीटर एंड द circumference was also 88 बिकॉज सेम वायर बेंड करके हमें क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r इक्वल्स टू 88 and that is 2 value of pi is 22/7 into radius equals to 88। 44 2 जा 28 then r 88 radius equals to आ जाएगा 2 into 7 that equals to 40। now we have to find area and the formula of area of circle is pi r square। so that is equals to 22/7 into 14 into 14। 7 2 जा 14, 44 into 14, 14 6 जा 56, 5 7 44 56 और 6 61। so that is equals to 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके यूनिट सेंटीमीटर में है तो आंसर सारे आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ए शॉपकीपर mark the cost price of two identical article, one is 100% above the cost price and the other one is 50% above the cost price, find overall profit। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए CP एंड SP चाहिए। सो सबसे पहले हमें CP कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट सपोज CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल CP1 दैट इज 100। सो अगर उसको 100% अबाउ किया गया है तो मार्क प्राइस 1 कितना आ जाएगा, 200। देन अगेन कोस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 100 क्योंकि आइडेंटिकल है एंड द मार्क प्राइस इज इट्स इंक्रीज बाय 50% तो आ जाएगा 150। नाउ वी हैव टू एंड द डिस्काउंट इज 20% सो भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। सो द MP इज 200 इंटू 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 अपॉन में 100। सो द SP इज 160। सो जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का या आइडेंटिकल आर्टिकल्स का दैट इज 160। इन द सेम वे SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 150 इंटू 80 अपॉन में 100। तो 20 से 20 58 जा 120 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 120 एंड द टोटल SP ऑफ टू आर्टिकल इज 120 plus 168 sorry 160 that is equals to 280 and total CP is आ जाएगा 100 plus 100 200। so the net profit is SP minus CP that is equals to 280 minus 80। okay so 280 minus 100 that is equals to 80 and the profit percent formula is profit upon CP into 100। so that is equals to 80 upon 200 into 100। so 20 से 20 cancel that is equals to 40%। so the profit overall profit on two identical article is 40%। Geeta can finish a piece of work in 20 days and Meena in 25 days। Then they work together for 5 days। After 5 days Meena withdraw कर लेती है तो how many days Geeta will finish the remaining work। जो गीता है वो फिनिश करेगी remaining work को। So let's suppose जो गीता है वो किसी काम को 20 days में कर रही है
जो मीना है वो किसी काम को 25 डेज में कर रही है, एंड द पॉइंट इज हमारे पास टोटल वर्क नहीं है। सो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं एलसीएम लेके 20 का एंड 25 का। द एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इज 100, तो हम मान लेते हैं कि वो कोई भी काम है दैट इज 100 यूनिट। सो हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ गीता। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, की कोई कितने टाइम में कितना काम कर रहा है। सो वर्क डन है 100, टाइम है 20 डेज, सो द एफिशिएंसी ऑफ गीता आ जाएगी दैट इज 5 यूनिट। सो एफिशिएंसी ऑफ गीता इज 5 यूनिट पर डे। इन द सेम वे एफिशिएंसी ऑफ मीना इज 4 यूनिट पर डे, एंड द एफिशिएंसी ऑफ गीता प्लस मीना इज 9 यूनिट पर डे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मीना है और जो गीता उन दोनों ने मिलके 5 डेज काम किया है, तो अगर 1 डे में 9 यूनिट काम करते हैं तो 5 डे में कितना करेंगे 45 यूनिट इन 5 डेज। आफ्टर 5 डेज मीना विड्रो द वर्क, तो टोटल वर्क था 100 यूनिट, उसमें से 45 काम हो चुका है। सो कितना काम बचा है 55 यूनिट, एंड इस 55 यूनिट को जो करेगा वो है मीना। सो टाइम निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज बोल सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी ऑफ गीता इज 5, सो व्हेन वी कट इट दैट इज इक्वल्स टू 11 डेज। सो गीता विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 6 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड मेजरिंग 36 मीटर लेंथ, 15 मीटर ब्रेड्थ एंड 8 मीटर हाइट। सो जो नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला है, सिंपली हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का जो फॉर्मूला है हम करते हैं वॉल्यूम को डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। बट कंपैरिजन करते ध्यान हमें रखना है कि जो यूनिट है वो सेम में हो, उसकी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। सो दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे तो वो हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर एंड 800 सेंटीमीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि है साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो 6 से कट करेंगे 600, देन अगेन 6 से कट करेंगे तो 100, देन अगेन 2 से कट करेंगे तो 3, 2 से कट करेंगे तो 400, देन 3 से कट करेंगे तो 500। सो 20 20 20, ओके वी हैव 6 zeros, 6 and 4 5s are 20. Okay, the next question is how many sides does a polygon have if the sum of interior angle is 20 right angle? तो sum of interior angle का फॉर्मूला सभी को पता होगा, that is n-2 into 180 डिग्री, जो कि दिया गया है 20 राइट एंगल्स के। तो राइट एंगल्स यानी मल्टीप्लाई 90, सो दैट इज n-2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 90, 180 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में। सो 10 से 10, 9 2 जा 18, 2 10 जा 20, सो द n इक्वल्स टू 10 और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 12 साइड्स। सो द आंसर इज 12। And the next question, question number 15, that is on selling 300 apples at 34 Rs10, Parkhar gained 400 rupees. At what rate did he buy? किस रेट से उसने बाय किए एंड what was his gain percent? Then we have to find gain percent. So सबसे पहले उसने 300 सेल किए हैं एप्पल्स, तो हम मान लेते हैं उसने जो बाय किए होंगे वो भी 300 ही किए होंगे। सो 3 एप्पल है, उनकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। जो 300 एप्पल है उनका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये इसके 100 टाइम्स है तो इसका 100 टाइम्स हो जाएगा 1000। सो वी हैव एसपी दैट इज इक्वल्स टू 1000, देन वी हैव प्रॉफिट दैट इज 400। सो द सीपी इज एसपी माइनस प्रॉफिट, सो ये हो जाएगा 1000 माइनस 400 इक्वल्स टू 600 रुपीज़। सो उसने बाय किए हैं
600 रुपीज़ के अंदर। ओके, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मान लिया था कि अगर 300 सेल किए हैं तो 300 उसने बाय किए होंगे। सो रेट क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज़ 300। सो कट करेंगे 300 3 2 6। सो आ गया 2 रुपीज़ में 1 एप्पल। एंड द प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट हमारा 400 का है, सेलिंग प्राइस 1000 था एंड कॉस्ट प्राइस इज 600 मल्टीप्लाई में 100। तो 20 से 20, 2 से कट करेंगे 3, 2 से कट करेंगे तो 200। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 200 बाई 3 दैट इक्वल्स टू 66 बाई 3, 66 is to 2 by 3%, that is the profit percent. A family consists of 4 person. If Vijay scholarship is double, then the total income of the family increase by 5%. अगर मदर सैलरी इंक्रीज, ओके मदर सैलरी डबल होती है तो फैमिली इनकम होती है 15% इंक्रीज, फादर की सैलरी डबल होती है तो फैमिली इनकम ग्रो करती है 25%। So by what percent will the family income grow if grandpa is pension is double? Okay. So सबसे पहले हम मान लेते हैं विजय प्लस his mother प्लस his father प्लस his grandfather, इनकी सैलरी होगी 100 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले उसने जो सैलरी डबल की है वो विजय की सैलरी डबल की है। विजय की सैलरी का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ विजय। सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ विजय सैलरी प्लस में बाकी 3 मेंबर्स की सैलरी, दैट विल बी इक्वल्स टू 5% इंक्रीज होगा तो 100 पे 5% इंक्रीज होता है तो दैट विल बी 105 यूनिट। देन वी कैन राइट इट एज V प्लस M प्लस F प्लस G, दैट इज इक्वल्स टू 105 एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ V प्लस M प्लस F इज 100। सो V इक्वल्स प्लस 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 105। तो जो विजय है उसकी जो सैलरी है वो 105 माइनस 100 यानी 5 हो जाएगी। सो सिमिलरली हम सभी की सैलरी को डबल करेंगे। सो जब हम उसकी मदर की सैलरी को डबल करेंगे दैट विल बी M प्लस V प्लस M प्लस F प्लस G, दैट विल बी द 15% ग्रो यानी 115 हो जाएगा। सो मदर सैलरी इज, इनकी वैल्यू 100 है, उधर जाके माइनस होगी, दैट विल बी 15%। इन द सेम वे द फादर सैलरी इज 25%। देन द ग्रैंड फादर सैलरी इज, टोटल हमने 100 मानना था, टोटल 100 था, 100 में से 5 विजय की है, 15 फादर की है, माइनस 25 मदर की है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 55। जो ग्रैंड फादर है उसकी 55 क्या है, पेंशन है। अब उसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 55 दैट विल बी 110 प्लस जो 45 फैमिली मेंबर्स की है वो, दैट विल बी इक्वल्स टू 155। तो पहले थी उसकी सैलरी 100 यूनिट, अब हो गई 155 यूनिट, तो जो इंक्रीज है दैट विल बी इक्वल्स टू 55%। सो द आंसर इज 55%। अगर ग्रैंडफा की सैलरी पेंशन डबल होती है तो जो फैमिली की इनकम है वो 55% इंक्रीज हो जाएगी। गिवन दैट 268 इंटू 74 इज इक्वल्स टू 19832, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.68 into 0.74. So we can write it as 268 by 100 into 74 by 100, and the product was already given in the question, that is 19832 by 10,000. So we put decimal after 4 digits. So this is the answer. The question number 18, the sum of 3 conjugative integer is s. कोई 3 कंजुगेटिव इंटीजर है जिनका सम है s। इफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इंक्रीज बाय 10, कि जो स्मॉलेस्ट इंक्रीज है इंटीजर है वो 10% इंक्रीज होता है, मिडल इज डबल, जो मिडल है वो डबल हो जाता है, एंड द लार्जेस्ट इंटीजर इज रिड्यूस बाय 20, ये हो जाता है रिड्यूस। और जो उनका न्यू सम आता है वो आता है x प्लस 22।
सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एस। हमें ओरिजिनल नंबर भी फाइंड आउट करना है और सम भी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर is equals to x, second one is x plus 1 and the third one is x plus 2 and the sum is x plus 1 plus x plus 2 that is equals to 3x plus 3. now उसने कहा कि जो नंबर है वो 10% इंक्रीज हुआ, अगर वो पहले x था तो अब 10% इंक्रीज होके हो गया 110% प्लस। देन सेकेंड नंबर है वो डबल हुआ है, तो पहले था x प्लस 1 तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस। देन थर्ड नंबर रिड्यूस हुआ है, तो कोई भी नंबर टोटल होता है 100%, उसमें से 20% रिड्यूस होके बचेगा 80%। सो दैट इज थर्ड नंबर होता है हमारा x प्लस 2 जो कि बचा है 80%। नाउ वी सोल्व द कैलकुलेशन, दैट इज x प्लस 20। ओके, इसको 2 को हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी अपॉन में 10 प्लस में 8x प्लस 16/10 इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस 25। सो दैट इज इक्वल्स टू 11x प्लस 20x प्लस 20 प्लस 8x प्लस 16 अपॉन में 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस 25। सी राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज़ 39x प्लस 36 इक्वल्स टू आ जाएगा 250 प्लस 10 3 30x। सो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 39x माइनस 30x इक्वल्स टू 250 माइनस 36। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से माइनस होके 9 एंड इसको माइनस करेंगे 4 1 2, देन 9 2 18, देन हमारे पास बचेगा 3 34, देन 9 3 27 23 7/9। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर, जो द फर्स्ट नंबर इज 23:7/9। सो फर्स्ट आ गया 23:7/9, सेकंड आ जाएगा 1 ऐड कर देंगे तो 24:7/9 एंड द थर्ड वन इज 25:7/9। अब हमें इनका निकालना है सम। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होती है हम उसको लिख सकते हैं कैसे, 23 प्लस 7/9, एग्जैक्टली सेम हम लिख लेंगे 24 प्लस 7/9, देन 25:7/9, देन 24 25 23, टोटल का सम आ गया 72 प्लस में 7/9 7/9 7/9 तो हो गया 21/9। दोनों 3 से कट हो रहे हैं तो 3 7 जा 21 3 3 जा 9। सो दैट इज इक्वल्स टू 72 प्लस में 7/3। नब हम इनका सम कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 3 2 जा 6 216 प्लस 7 इक्वल्स टू 3, देन द सम इज 223/3। क्वेश्चन नंबर 19 इज सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 20 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की कोई 3 फेसेस है जिनकी वॉल्यूम है हमारे पास, हमें वॉल्यूम निकालनी है, सॉरी 3 फेसेस है जिनका एरिया है हमारे पास। तो हमें पता है एक फेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल्स टू 20, फिर आ जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 32 एंड द फोर्थ वन इज h इंटू एल, दैट इज 40। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दे, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दे, दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ इक्वल आ जाएगा 20 इंटू 32 इंटू 40। सो दैट इज LBH का होल स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 32 इंटू 40। यहाँ पे इस तरफ स्क्वायर में है, इस तरफ जाके स्क्वायर रूट में हो जाएगा एंड हमारी वॉल्यूम ही निकल जाएगी। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 20 इंटू 32 इंटू 40। सो वी कैन राइट इट एज 20 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 20। सो हमारा एक 20 का पेयर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं नीचे। 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16,
2 का पेयर बन गया नीचे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 जा 4, 4 जा 16, 0, 160. सो 160 इज द आंसर. फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम. सो हमें इस एंगल का प्लस में दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम निकालना है. सो फर्स्ट हम इस लाइन को आगे करके क्रॉस कर लेते हैं. मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है टी. सो इन ट्रायंगल TEC सम ऑफ एंगल E प्लस एंगल C, इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं. तो इन दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं T, इसको मान लेते हैं P. सो एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ATP. इन द सेम वे अगर हम इसको इससे मैच कर देंगे देन वी हैव अनदर ट्रायंगल that is this triangle PDB. So in triangle PDB, so angle D plus angle B, sum of two interior angle equal हो जाएगा one exterior angle that is P. So that is angle APT. And in triangle APT, sum of all three angle is 180. So angle P है हमारे पास एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल जो T है उसकी वैल्यू है हमारे पास एंगल E प्लस एंगल C, एंड एंगल A तो एंगल A है, और इन तीनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री. अगर हम अच्छे से देखें तो ये एंगल A B C D E का सम है, यानी एक स्टार के अंदर 5 एंगल है और पांचों ही एंगल का सम कितना है 180. The next question is find the sum of 2 plus 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर 10. तो वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं जस्ट लाइक कि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, फिर 8 16 32 प्लस 64 128 प्लस 256 प्लस में 512 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2 की पावर 10 हो जाएगी 1024. देन वी हैव टू सम ऑफ ऑल दीज, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम अच्छे से देखें 2 to 4, फिर ये डबल हो गया, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, स्टार्टिंग में डबल नहीं है तो इनका सम आ जाएगा 1022 प्लस 1024. सो इसका सम आ जाएगा 2046. दिस इज द फर्स्ट वे. लेकिन अगर यहाँ पे अप टू 100 आ जाता, अप टू 200 आ जाता, तो उसके लिए हम क्या करते, 11th क्लास में चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम जीपी बोलते हैं जिसको, उसके अंदर फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं ए एंड द सेकेंड टर्म या हम मानते हैं इन दोनों का कॉमन रेशियो. एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, इनके अंदर होता है कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो होता है A2 माइनस A1. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे है 2 एंड कॉमन रेशियो हो जाएगा 4/2, कट करेंगे तो आ जाएगा 2. ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो निकालें, चाहे हम फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का निकालें, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों टर्म कंजुगेटिव होनी चाहिए. सो अब जो सम का फॉर्मूला होता है इसके अंदर दैट इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n अपॉन n माइनस 1 अपॉन में n माइनस r माइनस 1. सो a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू भी 2 है, एंड नंबर ऑफ टर्म क्या होती है n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 10 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1. सो ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर 10 हमने अभी देखा है 1024 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1023 इक्वल्स टू 2046. दैट इज द सम. क्वेश्चन नंबर 22. Two regular polygon are such that the ratio between the number of side is 1:2. जो number of side है उनका रेशियो है 1:2 and the ratio of measure of their interior angle is and 3:5. तो हमें बतानी है number of side. तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, और ईच पूछा है तो अपॉन में n डिवाइड बाई मान लेते हैं. पहले है तो इसका नाम n1 दे लेते हैं. सेकेंड वन इज n2 माइनस 2
इंटू 180 अपॉन में n2, और इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 3/5। देन एक चीज़ हमें और मिली है, एक 1 रेशियो में एक 2 रेशियो में, तो एक को मान लेते हैं हम x एंड सेकेंड को मान लेते हैं 2x। तो 180 से 180 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसकी जगह हम रख लेंगे x, तो x माइनस 2 अपॉन में x डिवाइड बाय आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन में 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया 3/5। देन जो पास पास के होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, दूर दूर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ गया 2 ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में 2x माइनस 2 इक्वल्स टू आ गया 3/5। देन वी हैव टू परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाइंग, दैट इज इक्वल्स टू सो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 ऑफ 2x माइनस 2, सो दैट इज 10x माइनस 20 इक्वल्स टू 6x माइनस 6। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 20 माइनस 6, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 4x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू आ गया 14/4। देन कट करने पे आ गया 7/2। पॉलीगन की जो साइड्स होती है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, सो मे बी देर इज सम एरर इन क्वेश्चन। तो जो पॉलीगन है उसकी साइड कभी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन बोल सकते हैं, डेसिमल में नहीं आती है। अगर साइड फ्रैक्शन में होगी इसका मतलब जो पॉलीगन होगा वो क्लोज नहीं होगा, तो वो पॉलीगन ही नहीं हो सकता फिर। सो इन क्वेश्चन नंबर 23, इन ए सीक्वेंस each term is increased by adding the previous term to a number, किसी नंबर में प्रीवियस टर्म को ऐड करते हैं, देन उसमें 2 इंक्रीज करते हैं each टाइम, हर बार करना पड़ेगा। देन जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, सेकेंड टर्म है 9। जो फर्स्ट टर्म है मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 9। अब उसने कहा प्रीवियस टर्म को ऐड करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है 5। तो इस 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। उसने यही कहा प्रीवियस टर्म को ऐड करेंगे और 2 ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो 7। तो 9 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 7 आ गया 16। सेम वे यहाँ पे जो प्रीवियस टर्म है दैट इज 9, सब 9 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो A4 आ जाएगा 16 + 11 दैट इज 25। ये हमारी बन गई सीक्वेंस। तो इसने पूछा है फाइंड द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारी हो गई 25। देन इसने पूछा राइट ए जर्नल फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो इसी सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो एक है हमारे पास 4 टर्म, एक है 9, एक है 16, एक है 25 एंड सो ऑन। एंड वी कैन क्लियरली सी दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं जो जर्नल फॉर्मूला है इस चीज़ के लिए वो हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर। n इक्वल्स टू बी द नेचुरल नंबर, जो n है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3। सो 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड द सो ऑन। इन क्वेश्चन नंबर 24, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट इज 75। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, एवरेज दे रखा है। व्हेन द टॉप 5 स्कोरर आर रिमूव, जो टॉप 5 स्कोरर है उसको रिमूव कर देंगे तो एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 15 स्टूडेंट ड्रॉप टू 70, तो उनका जो एवरेज स्कोर है वो 70 पे आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें निकालना है, तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ 20 स्टूडेंट, तो उसका है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम क्लियरली देख सकते हैं, जितने स्टूडेंट होंगे वही होगा। तो एवरेज हो गया 75 × 20 दैट इज इक्वल्स टू 0, 5 2 10, 4 1500 एंड द सम ऑफ 15 स्टूडेंट आफ्टर रिमूविंग द स्कोर ऑफ 5 टॉप स्टूडेंट इज number of student 15 and average is 70, so 0 same 15 7 जा 105। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है तो स्कोर क्या हो जाएगा टॉप स्कोरर का, स्कोर ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट इज S20 में से हम माइनस कर देंगे S15 दैट इज इक्वल्स टू 1500
माइनस 1050, दैट इज इक्वल्स टू 450। हाँ 450। ना उसने बोला कि फाइंड द न्यू एवरेज इफ वन एडिशनल स्टूडेंट स्कोरिंग 60 इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसमें से एक और माइनस कर दिया, तो अब स्टूडेंट बच गए 14। तो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज के लिए हमें चाहिएगा न्यू सम अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो न्यू सम कितना हो जाएगा, हमारे पास 15 स्टूडेंट का जो सम था वो था 1050, तो जो 14 स्टूडेंट का जो सम होगा वो हो जाएगा 1050 माइनस 60, तो ये आ गया 099। सो दैट इज इक्वल्स टू 990 अपॉन में 14। 2 से कट होके आ गया 7, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, देन द आंसर इज 495 अपॉन 7। दैट विल बी अराउंड 7 7 जा 49, डिवाइड होने पर 0.77 जा 49, 70.7 के आसपास आ जाएगा एवरेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो जैसे a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो पास पास के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दूर दूर के हो जाते हैं। इसको हमने एक तरीके से और भी पढ़ा होगा कि अगर ये ऐसे होता a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, तो इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो फ्रैक्शन के अपॉन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, एक एक पार्ट को पिक करेंगे, देन हम सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले आएगा 2 + 1/4, तो हम इसको 3 स्टेप मेथड से सोल्व करेंगे, दैट विल बी 9/4। देन क्वेश्चन इज 4 - 5, देन 1 + 1/3 + 1/9/4, देन इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 4 - 5 अपॉन 1 + 1/3 + 4/9। देन हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे बाय 3 स्टेप मेथड, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 - 5 अपॉन 1 + 1/9 3 = 27, 27 में 4 ऐड करेंगे 31/9, 31/9। इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इक्वल टू 4 - 5 अपॉन 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 9/31। देन अगेन हम 3 स्टेप मेथड से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 - 5, 31 + 9 आ गया 40, और ये 31 चला गया ऊपर, ये आ गया 31/40, 5 8 जा 40, ये आ गया 4/1 - 31/8। देन अगेन 3 स्टेप मेथड से हम यूज करेंगे, 4 8 जा 32 - 31/8, तो ये आ जाएगा 1/8 के इक्वल। So 1/8 is the answer. In question number 26 we have 6 parts, so let's solve step by step. Question number first is what are the various expenditure incurred in publishing a book? तो क्या क्या एक्सपेंडिचर लगेंगे परसेंटेज के अंदर जो हमें देने हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सो एक के तो आंसर यही बोल सकते हैं कि जो प्रमोशन कॉस्ट है वो 10% है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है, रॉयल्टी 15% है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% है, पेपर कॉस्ट 25% है, एंड बाइंडिंग कॉस्ट 20% है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट थी हमारी 20%, तो देन उसने पूछा है देन व्हाट विल बी द रॉयल्टी टू बी पेड, तो रॉयल्टी है हमारे पास 15%। सो वी कैन क्लियरली सी कि जो 20% है वो इक्वल है 3060, क्योंकि उसने बोला है कि पब्लिशर को पे किया है प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट है 20% की टोटल, तो जो 1% है वो इक्वल आ जाएगा 30600/20। सो 10 से 10 2 से कट करेंगे 1530, दैट विल बी इक्वल्स टू 1530। लेकिन उसने पूछी है रॉयल्टी कॉस्ट, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 15%, दैट इज इक्वल्स टू 1530 इंटू 15, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, 53 × 45, 15 का स्क्वायर है 225, तो आ जाएगा 229, दैट विल बी 22,950। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द रॉयल्टी, रॉयल्टी का जो एंगल बताना है हमें वो बताना है, तो रॉयल्टी है 15%,
एंगल का फॉर्मूला सभी को पता होगा, सेंट्रल एंगल का, सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 15% तक के अपॉन में 100 एंड एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई। तो 10 से 10, 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 5, 5 3 जा 15। सो द एंगल इज 54 डिग्री। एंड द पार्ट 4 इज द प्राइस ऑफ ए बुक मार्क 20% above the cost price and the mark price of the book is 180. So we have to find the cost of paper used in single book. So according to the question उसने बोला है कि CP का अगर हम 120% निकालें तो वो इक्वल आना चाहिए मार्क प्राइस के, एंड वी कैन क्लियरली सी मार्क प्राइस इज 180। 5 6 तो ये आ जाएगा CP of 6 times by 5 equals to 180 degree. Then we have to cut 6 3 is 18, 30. Then CP of single book is equals to 30 into 5. That is equals to 150. यानी जो वन बुक है उसकी जो कॉस्ट है that is 150 rupees. The next part is if 5,500 copies are published and the transportation cost on them is amount to Rs 82,500. Then what should be the selling price of the book so that publisher can earn 25% profit. Okay, so अभी के लिए जो पब्लिशर है उसने जो अमाउंट पे चार्ज किया है, तो अभी हमारा CP है 82,500। देन उस पर हमने देन उस पर लगी है ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, दैट विल बी द 10% ऑफ दिस। तो 10% ऑफ दिस है ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। So 10% of 82,500 is 10 upon 100, 20 से 20, that is 8,250. So total amount जो हमने पे किया है that will be equals to 82,500 प्लस में 8,250, that will be 0,570 this 90,750. देन अब पब्लिशर चाहता है 25% प्रॉफिट, तो SP का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज इक्वल्स टू CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। सो दैट विल इक्वल्स टू 90750 इंटू 125 बाई 100। सो दैट विल बी 25 5 जा 125, 25 4 जा 4, देन 2 से कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। Okay, now we have to multiply it by 5. That will be 5 5 ja 25, 5 7 ja 35, 2 37, carry 3, 3 5 ja 15, 18, carry 1, then 5 5 ja 25 and 26, 22 divide by 2। 2 से हम इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 1 बच के 2 and 5। The cost is 113437.5. Royalty on the book is less than printing cost by how much percent? तो royalty है 15%, printing cost है 20%, तो इससे कितना कम है? We can clearly see 5% है। And the comparison किससे पूछा है उसने? रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कोस्ट। जो प्रिंटिंग कोस्ट से कंपैरिजन उसका पूछा है, तो डिवाइड में कंपैरिजन कोस्ट इनटू में 100। सो परसेंटेज से 15 से कैंसिल, 25 जा 100, सो दैट इज 25% लेस। क्वेश्चन नंबर 27, ए मेटल क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 मीटर, 22 मीटर एंड 14 मीटर इज मेल्टेड इनटू melted and cast into 7 identical cylinder of radius 7 मीटर। सबसे पहले तो क्यूबॉइड है हमारे पास, जिसको मेल्ट करके हमने बना लिया है 7 सिलेंडर। देन उसने कहा कि इन सिलेंडर को अगेन मेल्ट कर दिया है और उसको बना लिया क्यूब, एंड द साइड ऑफ ईच क्यूब, जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो है इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमें हाइट की नीड पड़ेगी, तो हम इस ऐसे केस में वॉल्यूम का कंपैरिजन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 7 सिलेंडर, क्योंकि उससे 7 सिलेंडर ही बनाए गए हैं। सो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू आ जाएगा 7 इंटू
पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 7 जा 49 से 49 कैंसिल, देन हाइट इज 14। इट मीन्स जो क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, उसकी साइड कितनी है, 14 है। सो अब हमें बताना है हाउ मैनी सच क्यूबिज कैन बी कास्टेड। तो कितने क्यूब कास्ट किए जा सकते हैं। सो टोटल वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला है। तो इसका कंपैरिजन किसी से भी कर सकते हैं। क्यूबॉइड की वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो दैट इज 49 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन 14 इंटू 14 इंटू 14। सो 14 से 14 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 से कट करेंगे 11। सो द नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे 11/5। तो 11/2 दैट इज इक्वल्स टू 5.5। तो नंबर ऑफ क्यूब्स भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ए कैन ऑफ ऑयल वाज 4/5 full when 6 bottle of oil were taken out and from this can and 4 bottle were poured into it, it was 3/5 full. How many bottle of the oil can be contain all bottle of equal volume? Okay, so उसने कहा कि हमारे पास कोई टैंक है, उसके अंदर 3/4 में पानी है, सॉरी 4/5 में पानी है, उसके अंदर से 6 बोतल टेकन आउट यानी निकाल ली गई है, 4 में वापस से पोर की गई है, देन वो फुल है 3/4। तो लेट नंबर ऑफ बोतल फिल विद फुल टैंक इज x। फुल टैंक में जो भर जाएगी x, तो 4/5 में हम भर सकते हैं 4/5 इंटू x बोतल। देन उसने 6 बोतल सब्ट्रैक्ट की गई, देन 4 बोतल ऐड की गई, तो वो इक्वल हो गया 3/4 ऑफ x बोतल के। सो ये आ जाएगा 4/5x, इनको कट करेंगे -2 इक्वल्स टू आ गया 3x/4। देन ये इधर ये उधर, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। देन हम 3 स्टेप मेथड सोल्व करेंगे, दैट विल बी 16x माइनस 15x बाई 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा x/20 इक्वल्स टू 2। देन x इक्वल्स टू आ जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40। एंड x हमने बोला था कि जो नंबर ऑफ बोतल है वो फिल होगी एंटायर टीन से, दैट इज 40। हाउ मैनी ब्रिक्स of size 22 cm, 10 cm and 7 cm are required to construct the wall 11 meter long, 3.5 meter high, 40 cm thick if the cement and sand used in the construction consist 1/10 of the total material. Okay, अगर total material 10 है तो उसके अंदर से 1 मटेरियल किसका है, सीमेंट का है, तो टोटल जो ब्रिक्स होगी उसका होगा 9/10। सो ब्रिक्स का हो जाएगा 9/10। तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स मान लेते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वो इक्वल मिलेगी हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल के। वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मान ली हमने n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है 22 इंटू 10 इंटू 7 इक्वल्स टू, ओके, इसके अंदर जो वॉल है उसमें 9/10 में ही ब्रिक्स है, तो 9/10 को ही लेना पड़ेगा हमें। सो 9/10 इंटू, ओके, ये सेंटीमीटर में है वो मीटर में, तो दोनों यूनिट को सेम कर लेंगे, सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 350 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। सो ये 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 7 5 जा 35, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से कट करेंगे 5। देन n इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू 25 इंटू 40, सो ये आ जाएगा 0 25 4 जा 100 इंटू 9, सो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 9000 ब्रिक्स। सो द आंसर इज 9000 ब्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अभिषेक स्कोर्ड 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 85% in science,
साइंस, 80% इन सोशल साइंस एंड 70% इन लैंग्वेज। मैक्सिमम मार्क्स दे रखा हमारे पास मैथ के, साइंस 150, सोशल साइंस 150, लैंग्वेज इज 100। तो हमें बताना है फाइंड हिज एग्रीगेट परसेंटेज। ओके, तो एग्रीगेट परसेंटेज बताना तो पहले हमें सभी का स्कोर चाहिएगा। सो पहले हम निकाल लेते हैं मैथ्स का। सो मैथ्स का जो स्कोर है वो है 90% ऑफ 200। सो दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 90 इंटू 200 अपॉन में 100, कट करने पर आ गया 180 स्कोर। सिमिलरली जो साइंस का स्कोर है वो है 85%। 85% है किसका? 150 का। सो 150 बाय 100, 10 से 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। सो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 24, 25 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 127.5। देन आता है सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है उसका जो स्कोर है दैट इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 150। तो ये 100 पॉइंट परसेंटेज को हटा के दैट विल बी 120 स्कोर। एंड द लास्ट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में जो उनका स्कोर है दैट विल बी इक्वल्स टू 75 ऑफ 100। तो 75 इंटू 100 बाई 100 आ गया 75 स्कोर। अब उसने एग्रीगेट परसेंटेज पूछे तो उसके लिए हमें एग्रीगेट स्कोर भी चाहिए। तो एग्रीगेट जो स्कोर है वो हो जाएगा 180 प्लस में 127.5 प्लस में 120 प्लस में 75, ये आ जाएगा 300, 375, 475 में ऐड करेंगे 27.5 तो ये आ गया 5205। तो एग्रीगेट स्कोर आ गया 520.5। एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो हो जाएगी टोटल स्कोर जो उसने ऑब्टेन किया है अपोन में जो टोटल 200, 150, 150, 300, 500 और 600 में से इनटू में 100। पॉइंट हटा के नीचे 0, 20 से 20 कैंसिल, 5 से कट करेंगे 12, 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5, 0 0, 5 5 जा 25। देन 3 से कट करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। दैट विल बी इक्वल्स टू 335 बाई 4। देन 4 8 जा 32, 1 आ गया, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। ओके, 83.75%। देन उसने कहा इफ ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज एग्रीगेट परसेंटेज बाय 2 थ्रो लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू करना चाहता है स्कोर इंक्रीज। 83 है, 2% वो इंक्रीज करना चाहता है, यानी वो चाहता है 85.75% मार्क्स। और 85% किस पे चाहता है वो? 600 पे टोटल पे। तो पहले हम निकाल देंगे उसको ऑब्टेन कितने करने पड़ेंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स जो आएंगे वो आ जाएगा जितना उसने परसेंटेज स्कोर करना चाहता है 85/100 किस में से करना चाहता है? टोटल में से। तो 600 अपॉन में अगेन 100। तो 20 से 20 कैंसिल, so that will be equals to 5 6 जा 30, 5 6 जा 42 और 3 45 कैरी 4, 5 6 जा 34, 3 48 और 3 51 अपॉन 100। सो वो अब उसको करना है स्कोर 514.5 स्कोर। पहले वो स्कोर कर रहा था 502.5, अब कर रहा है वो 514.5। तो कितना स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा? 12 मार्क्स का। किसके अंदर करना पड़ेगा? लैंग्वेज के अंदर। तो लैंग्वेज के अंदर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 514.5 माइनस 502.5 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो पहले उसका जो लैंग्वेज का स्कोर था वो था 75, अब उसको 12 ऐड करेंगे तो उसको स्कोर करना होगा 87। Okay, now at the end, I would insist that you found video quite helpful. If you are preparing for upcoming RIMC entrance exam, make sure you connect with Dabad Academy for IMC training. Thank you for your time and attention.